Hello everyone, welcome to this next edition of Market Rubru. I have with me a person who has more than 20 years of experience in the market. He mainly trades Nifty futures on a positional basis. He also trades weekly Nifty options intraday, mostly on the long side. But of late, in fact, he has been a TradePoint user for more than 4 years, almost 5 years now. And he has developed his own system, which is based on some very good patterns on point and figure, which is the ABC pattern, which he has found out after a lot of study that this pattern can resemble the very famous VCP pattern. So let's hear from him. Welcome, Mr. Prakash Tejwani. थैंक यू एपी सर. या सो आप जरा आपकी जर्नी थोड़ी सी पहले बताएंगे और फिर यू कैन स्टार्ट. Okay, I started in trading in stock market from 2003. So have seen lots of ups and downs in 2008 and 2020, everything. So right now I'm trading in a positional Nifty, means on basis of trending plus mean reversion with the help of point and figures and Renko patterns. And Nifty So it is weekly options. एक मिनट. So it is not a stop and reverse system, right? It's first I take the trend from the this thing. On candlestick I have one method. Then I come to the point and figure. It's kind of at top and bottom it gives a stop and reverse, but if SL triggers in between, so it's not kind of stop and reverse. It's a trending, but at top and bottom it gives mean reversion kind of system. Okay. So there are times when So you don't have any trade open. That is what I meant. yeah, yes, Okay. correct. So kind of I am not a breakout trader. I am kind of like a pullback trader. So first I decide the trend, and the any scrapes or index pullbacks near the stop loss, and when it reverse, so I get entry with a low risk entry at over that time. So Right. when Krishna Kumar ji in weekly webinar he introduced this VCP pattern, so I got very much impressed with them, the VCP pattern, and I thought, yeah, that it's when it's turning up, and it's after turning up it gets blown up after that. So I will present in my system. Okay. Yeah. So what I tell is it's a explosive VCP pattern, and it is very much equivalent to probable ABC pattern. ABC pattern has been developed by Mr. Prashant Shah of Define Edge. So I will break down both the systems in brief in further my presentation. So first I would like to thank Mr. Prashant Shah and Define Edge team for giving the beautiful patterns in Renko and point and figure, and B. Krishna Kumar, who introduced the ABC pattern and VCP through his weekly webinars he takes on the Friday. So what is the VCP pattern? So it has been popularized by Mark Minervi in his books Think and Trade Like Champion and Trade Like a Stock Market Wizard. So what is the VCP pattern? So VCP pattern is a pause during the new uptrend. When the stock runs from the bottom to upside in a full swing, it gets a pause. So it's like this, it gets up and it gets paused. In the cooling action period, it offers a low opportunity system before it takes up against. So I'll share the one example of VCP pattern. The stocks, this is Chambal fertilizer in a candlestick chart. It started from around 120 and it went up till around 265. So it took around 104 trading days, means around 150 days, calendar days, in a strong uptrend. So what happens? It gets paused at some period of time and it goes into the consolidation period. So what happens in consolidation period? In consolidation, some holders get exit their positions
and the stock is accumulated by the buyers in the market, Right. like here. And after that, it gives the explosive move. Means it took around 150 days starting journey. The second stage is consolidation. It took 3 months of the consolidation and 9 days to give 39% in 6 trading days. So basically, in So 3 months, it was only consolidating between something like 260 and 200. So you can call it a time correction and not a price correction. yeah, time correction it gives. Yeah. Small bit of price correction. Price correction is very small, but it takes time correction, as you said. Okay. Okay. So I was searching for the scanners kind of where I can find this patterns and where I can get the low risk entry. So we have a scanner, candlestick scanner in DefineEdge, where we have it's high-low retracement scanner in a smart scanner, where we can search where is the stock from recent highs or 52-week highs, and how many days it is under 5% or it means nearby 52-week where the stock is relying, और वो नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो और 52 वीक्स के नजदीक हो, वो हम Okay. सर्च करते थे. लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम वो थी कि वो हमें ईच एंड एवरी डे मैन्युअल ट्रैक करना पड़ता था. Correct. ओके, सो एंड आई वाज तो मींस हियरिंग. ये जो एक मिनट, ये जो स्कैनर था वो कैंडलस्टिक पे है, राइट? हाई लो स्कैनर. हाई लो स्कैनर जो रिट्रेसमेंट स्कैनर है वो कैंडल स्टिक स्कैनर है. राइट. या तो वो मीन्स के बॉटम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मीन्स के वो हमें सर्च करना पड़ा. वेटिंग पीरियड मीन्स एवरी डे वी हैव टू वेट एंड कम एंड ओवर एंड अगेन वो चार्ट में आना पड़ता था. सो आई वाज हियरिंग मिस्टर प्रशांत शाह इन दिस ऑनलाइन नेस्ट प्रोग्राम that he has a favorite pattern which is ABC pattern. So yeah, he has written this ABC pattern in his book, okay, point and figure book, and he shared this. Means in the ABC pattern we have three things. First, the alphabet A is a anchor column. I will share what is the anchor column, and then the breakout and the count. So he shared that this is one of my most favorite setups for momentum trading. So these words got imprinted in my mind, and I was चलो एक ट्राई करते हैं, एबीसी पैटर्न का हम स्कैनर बनाते हैं. सो आई started making it in the starting of March this month 2023. Now meet our hero. जो हीरो है आज का हमारा वो एंकर कॉलम है. So what is anchor column? So anchor column has been developed by Prashant Shah itself. Anchor column is a gift to the point and figure to the world of technical analysis. Means एक ही डायरेक्शन में X या O प्रिंट होते हैं, उसमें हम मिनिमम एक वैल्यू होती है वो 10 लेते हैं, मिनिमम 10 बॉक्स साइज. 15 भी ले सकते हैं. 15 लेते हैं. Depends. I will take 15, but the minimum criteria what Prashant Shah has shared means is 10. In lower time frame I will take 15, in higher time frame I will take 10. So minimum Correct, I take 10 and maximum I take 15. Okay. So what anchor column is a strong momentum trending move. जो होता है वो एक ही कॉलम में हम उसे कैप्चर कर सकते हैं. In a candlestick, I have given the example. Here the 9 candlesticks are there. In between, 3 candles are bullish and 6 are bearish, but the bearish columns are very too small for the reversal, and the bullish candles are too much. So ये 12 दिन का जो एक मूव है वो हम एक X में कैप्चर होता है, और जो ये स्ट्रॉन्ग एक
वन साइड बड़ा कैंडल बनता है पॉइंट एंड फिगर में, उसे हम एंकर कॉलम कहेंगे. Correct. So what is a probable point and figure ABC pattern? It consists of, probable means ABC पैटर्न बनने के पहले का स्टेज हम कहेंगे उसे, उसमें एंकर कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर कंसोलिडेशन और एक लो रिस्क एंट्री फॉर द एक्सप्लोसिव वीसीपी पैटर्न. ओके, ये आपको अगर जानना है तो मैंने लिंक दिया है, वो सेल्फ डॉट डिफाइनेड सिक्योरिटीज में, आप ब्रीफली वहां पे पढ़ सकते हैं. ओके, सो अभी जो सेटअप मैं शेयर कर रहा हूँ वो एफ के लिए है, फिर हम जाएंगे डिलीवरी बेस में उसे कैसे करते हैं. प्रोबेबल एबीसी पैटर्न को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए मिनिमम 15 कॉलम ऑफ एंकर कॉलम, मीन्स एक्स या ओ जो भी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना हो उसमें फर्स्ट हमको चाहिए 15 columns box size का anchor column in a daily time frame with a percentage of 0.25. Okay, anchor column is strong trend backup by momentum. Second thing So हमको basically, चाहिए, it means the trend is getting established. A very strong trend has been established. yes, very strong पहले हमको establish करना है. So consolidation में हमारा criteria ABC पैटर्न में ऐसा होता है कि minimum 5 columns चाहिए उसे. Okay, 3x and 2o's, otherwise vice versa in bearish pattern, 3o column and 2x column in between of 3. So फर्स्ट हमने एंकर कॉलम देख लिया कि वो एक अप ट्रेंड जो होता है वो हमें देगा, और कंसोलिडेशन हम कैसे फाइंड करेंगे. ओके, और फिर इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे. डेली टाइम फ्रेम में स्कैनर रेडी है जो मैंने शेयर किया हुआ है, प्रोबेबल एबीसी स्कैनर जो है वो ऑलरेडी शेयर किया है मैंने डिफाइनेड सिक्योरिटीज के आर जोन में पब्लिक सिस्टम बिल्डर में. Yeah, ठीक है, for वहां से those who don't रेडीमेड. know, what he meant was on Defined Securities web platform, which is Defined Securities R Zone, there is a facility to share a scanner publicly. So this is what he has done. He has made this probable ABC scanner and he has shared it for the public. Anyone can use that scanner. यस, ओके. फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया था डेली में 0.25 में एंकर कॉलम, देन कंसोलिडेशन सर्च करना है. अब हम एंट्री कहाँ करेंगे. एंट्री हम जाएंगे, आई टेक 5 मिनट चार्ट, ओके, ऑन 0.15 बॉक्स साइज, वहां पे हम जाएंगे. और मैं पहले सुपर ट्रेंड यूज करता था, जस्ट रिसेंटली अभी डिफाइनेड ने डी स्मार्ट एक नया इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया है जस्ट दिस वीक, एंड आई एम मुझे वो कंपेयर टू सुपर ट्रेंड से ज्यादा अच्छा लगा. सो आई हैव स्विच टू द डी स्मार्ट जस्ट रिसेंटली. ओके, सो दिस इज द, ये पॉइंट एंड फिगर में जो एबीसी पैटर्न है वो ऐसा दिखेगा. जो वीसीपी पैटर्न है, सी वीसीपी पैटर्न और जो प्रोबेबल एबीसी है वो कैसे मैंने क्लब की है या कैसे सिमिलर है वो मैं शेयर करता हूँ. ये Yes. जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया, देन यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ और फिर ये अगेन वो शूट आउट हुआ. Yeah, Then so this is the same ये chart. One is in point and figure, one is in candlesticks. कैंडलस्टिक में ये 15 मिनट में है, और ये जो पॉइंट एंड फिगर में वो डेली चार्ट है. Okay. मीन्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन एंड द अप मूव. ओके, यही मैं अगर दोनों ही पॉइंट एंड फिगर में करूं तो ये जो हमने पहले यहाँ पे कैंडलस्टिक में देखा 15 मिनट के चार्ट में, वो यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में है. ओके, या दिस थिंग स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन एंड द लो रिस्क एंट्री यहाँ पे हमको मिलती है. ये हॉल का एग्जांपल है. ओके, स्कैनर जो है वो हमें अराउंड यहाँ पे जो बॉटम बना उसके जस्ट वहां पे हमको सर्च करके हमको नाम देता है. फिर हम डेली में अगर स्कैनर में सर्च करूंगा, ओके, और फिर हमें शिफ्ट होना है लोअर टाइम फ्रेम में. फिर वहां पे हमको जो डी स्मार्ट है या एनीथिंग यू कैन टेक, डी स्मार्ट है, मस्ट है या ट्रेंड लाइन है, वो हमें एंट्री लेवल देगा, वो पहले से ही देगा. यानी आप ऑलमोस्ट मुझे ट्रेड करना है तो वो मुझे मीन्स 5-6 घंटे पहले या एक दिन पहले मुझे वो लेवल सारे देगा, यानी मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम है एंट्री लेने के लिए.
ऐसा करेक्ट, या बहुत टाइम होता है मुझे एंट्री लेने के लिए, और मुझे स्टॉप लॉस भी पहले से पता होता है कि मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरी एंट्री रहेगी, एक ये मिनट, सब मुझे एक पहले मिनट, से पता होता है। और प्रोबेबल एबीसी पैटर्न में मिनिमम 4 कैंडल्स चाहिए। वो 4 ओके, कैंडल्स 4 कॉलम चाहिए, नॉट अ कैंडल, कॉलम हम कहेंगे पॉइंट एंड फिगर ओके, में 4 कॉलम चाहिए। सो 4 कॉलम कब बनती है? फर्स्ट हमको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो एक्स में मिला, उसके बाद ओ, एक्स एंड ओ होता है, तो यहाँ पे प्रोबेबल स्टेज जो है वो स्टार्ट होता है। अब ये जो ओ कैंडल है वो कितनी भी नीचे जा सकती है, ठीक है, ये छोटी भी हो सकती है, यानी जो फोर्थ यहाँ पे ये जो मेरा माउस का है, ये ट्रेड या लिखा है उसके ऊपर, ओके। इसका ये हम लाइव और एग्जाम, एक लाइव, और एक हिंट ये भी है कि जब फोर्थ कॉलम बन रहा है तो एवरी टाइम ऑन द कमेंट्री यू हैव कॉलम रिवर्सल लेवल, तो वो यस ऑटोमेटिकली कॉलम, समझेगा कि कब एक्स का कॉलम शुरू होने वाला है। हाँ मैंने कॉलम रिवर्स, हाँ वहां पे कॉलम, अगर हम आप वो मैं लाइव भी आपको बताऊंगा। या अगर हम देखना चाहें तो मैं लाइव आ जाता हूँ। दिस वन या इज द एक्स वाइट जो कॉलम है वो एंकर कॉलम है, उसमें 104 कॉलम्स हैं, ओ बॉक्स बॉक्स हैं टोटल। सो या अवर मिनिमम, मैं मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एफ एंड ओ ट्रेड के लिए 15 रखता हूँ, उससे तो बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद एक ओ कॉलम चाहिए, एक एक्स और एक ओ। तो ये जो है ये प्रोबेबल स्टेज है। और अभी जैसे करेक्ट, सर कह रहे थे कि हमको कॉलम रिवर्सल क्राइटेरिया मिलता है, कॉलम रिवर्सल वैल्यू एक मिलती है, ओके। तो यहाँ पे या अगर हम सीआर लिखा हुआ देखेंगे, या सीआर एक लिखा है, वो कॉलम हाँ है ना, रिवर्सल वैल्यू 6, 654.84। या वो हमारी कॉलम रिवर्सल है। तो ये जब 654 कॉलम, 654 का एक एक्स का यहाँ पे एक नेक्स्ट, जब वो लॉक होगा, लॉक मींस डेली में 654 के ऊपर क्लोज होगा, करेक्ट, तब ये प्रोबेबल एबीसी स्टेज में आ जाएगा, करेक्ट, ओके। या तो अभी अगर मैं इसको, ये जो है प्रोबेबल एबीसी को अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, ये जो 4 कॉलम्स है उसको मैं एक्सपांड करूं, so I will show you in a lower time frame. या So it will look like this. ओके, सो दैट अर्लियर इट वाज अ डेली चार्ट, नाउ इट इज अ 5 मिनट चार्ट। 5 minute chart. Yeah, correct. या So it is a AB, VCP means strong uptrend. ये जो है यहाँ से ये स्टार्ट हुआ अपट्रेंड 23rd of February, और ये अपट्रेंड जो खत्म हुआ 6th of March को। So करेक्ट, the journey was from 550, around 550 till 719। तो ये एक जो इतनी हम कह सकते हैं कि 23rd February से 6 मीन्स अराउंड 14 डेज की जर्नी है, या वो हमने एक ही कॉलम में वो ए बी पॉइंट एंड फिगर में अच्छे से मैं कैप्चर कर पाता हूँ, जो करेक्ट, कैंडल स्टिक्स में मेरे 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 से पॉसिबल नहीं थी स्कैन करना। और या ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ से, व्हाट द कंसोलिडेशन हैपनिंग फ्रॉम 720, और ये अभी भी ऑन गोइंग कंसोलिडेशन है। तो अभी जो लास्ट जो ये अगर मैं 720 से 641, ये हमारी एक रेड ब्रिक बनेगी। 7 करेक्ट, 641 से 688 तक वो हमारी एक एक्स कॉलम बनेगी इन या डेली में। और ये जो वापस 688 से, और ये अभी चल रही है 644, ये हमारा फोर्थ करंट कॉलम कॉलम ऑफ ओ, बनेगा, करंट कॉलम या ऑफ ओ, ओके। मैं एंट्री कहाँ करता हूँ, ये ओ बन रहा है, देन आई विल जंप टू द दिस 5 minute चार्ट एंड आई विल प्लॉट द डी स्मार्ट विथ अ, बाय डिफॉल्ट जो डी स्मार्ट की वैल्यू है वो 10 है। यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नेचर और वट एवर रिस्क यू कैन टेक। बाय डिफॉल्ट या 10 है। मैंने उसका आर एन डी किया है, 6, 7, 8, 10, 11, 12 सब मैंने यूज किया। सो मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, आई कैन ट्रेड मीन्स इन एंड आउट में जल्दी से हो सकता हूँ, तो मैंने 6 लिया है।
सो अगर मैं यहाँ पे अगर लास्ट जो अभी लाइव इसकी रेट है 649 जो रेट है, अगर मैं वहां पे माउस का पॉइंटर रखता हूं तो हमें डी स्मार्ट का ये वॉकिंग लेग दिखेगा। डी स्मार्ट में दो है, एक रनिंग लेग है, एक वॉकिंग लेग है। ओके, Correct. वॉकिंग लेग जो WL है वो 663 है। अब जैसे ही 5 मिनट में 663.59 के ऊपर क्लोज होगा तो वहां पे मेरी एंट्री होगी। Okay. ओके, और जो एंट्री होगी फिर मोस्ट प्रोबेबली ये जो है रेड जो है वो ब्लू क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, Right. और ब्लू क्लाउड में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो हमें वॉकिंग जो अभी जो 663 है वो कन्वर्ट होके अराउंड 643 का लेवल हो जाएगा। वो टर्न अराउंड होके क्लाउड नीचे आ जाएगा और ये अराउंड लो के अराउंड मुझे एक कह सकते हैं कि एसएल देगा। सो अराउंड अराउंड 20 पॉइंट्स एसएल है मेरा इसमें। ओके, मैं कॉलम रिवर्सल पे इसलिए ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि कॉलम रिवर्सल डेली में होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं देता और वो Okay. और नीचे लोअर ड्रिफ्ट होता है। सो आई प्रिफर नॉट टू टेक इन एंट्री ऑन कॉलम रिवर्सल। जो कॉलम रिवर्सल हमें डेली में यहाँ पे दिखा रहा है 654, या लोअर टाइम फ्रेम मुझे थोड़ी लेट एंट्री मिलेगी बट विप्सॉस मेरे कम होंगे। दैट्स व्हाई आई Correct. डोंट टेक एंट्री ऑन कॉलम रिवर्सल। 2568 पे हमको एंट्री देता है और फिर Yeah. वो विद इन 2-3 डेज में ही वो 2800 चला जाता है। मेरा नेचर क्या है कि मुझे लो के नजदीक मुझे चाहिए Okay. कि मेरा जब रिस्क एंट्री है वो यहाँ पे लो होनी चाहिए। Correct. मतलब ओके, आपको हमेशा फास्ट लोकल में ही बैठना है, स्लो लोकल में नहीं बैठना है। हाँ, स्लो लोकल में नहीं बैठना है। कंसोलिडेशन, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरे सी Correct. व्हाट आई बिलीव, टाइम इज काइंड, टाइम जो है उसकी भी वैल्यू है। Right. टाइम, टाइम जो मैं दे रहा हूं उसका भी इन टर्म्स ऑफ पैसे में मैं उसकी वैल्यू करता हूं। अगर वही टाइम में अगर मैं कहीं और पार्क करता हूं, ओके, जैसे यहाँ पे मुझे एक अप ट्रेंड मिला, देन ये कंसोलिडेशन हुआ, अप ट्रेंड तो डिफाइन हो गया, चलो मैं कहाँ पे भी एंट्री ले लूं। ओके, लेकिन इसमें मेरा टाइम जाएगा। अगर यही टाइम में ये जो यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, ओके, कहीं अप ट्रेंड डिसाइड होने के बाद मुझे पता है ये अप ट्रेंड है, ये ऊपर ही जाएगा। ओके, लेकिन मैं एंट्री ले लेता हूँ, देन व्हाट हैपन्स के उस टाइम में अगर वही पैसे मैं कहीं और में इन्वेस्ट करूं, यही जहां पे एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है, ओके, तो मुझे कम टाइम में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। So सो basically, वही, just to summarize the rules, you necessarily have to wait for at least the fourth column after the anchor column, right? या दैट इज द रूल। एंड Hmm. वही रूल मैंने मेरे खुद के में इसमें अप्लाई किया है कि फोर्थ कॉलम तक मैं वेट करूंगा Okay. On the daily chart. ऑन डेली चार्ट्स, और वो Yeah. जैसे ही मुझे मिल जाता है फोर्थ कॉलम, फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। Correct. और इंट्राडे अगर मैं 0.25 डेली में लेता हूं तो 5 मिनट इंट्राडे में आता हूं। अगर मैं डिलीवरी बेस में हूं, अगर मैं 3% मंथली 3% यानी डेली 3% ले रहा हूं तो मैं शिफ्ट हो जाता हूं 0.25 डेली में। Okay. ओके, अब Yeah. मेरा जो रीजन है सुपर ट्रेंड से जो मैं स्विच हुआ डी स्मार्ट, जो अभी डिफाइन एज का नया इंडिकेटर है। ओके, सी यहाँ पे डी स्मार्ट सुपर ट्रेंड ने एंट्री दी सेम अदानी पोर्ट में। ओके, तो यहाँ पे एक विप्सो है, एक विप्सो यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जिट है, देन री एंट्री, और एक यहाँ पे लास्ट एग्जिट है। सो व्हेन आई सॉ दिस डी स्मार्ट, तो डी स्मार्ट ने मुझे यहाँ पे एंट्री दी, सेम यहाँ पे पॉइंट एंड मस्ट या फिर सुपर ट्रेंड दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे मुझे एंट्री दी। उसने मुझे एक बार एग्जिट किया, दो बार एग्जिट किया। जबकि डी Yeah. स्मार्ट मैंने एंट्री ली तो उसने कहीं भी उसने एग्जिट नहीं दिया और ये एंड तक ये चलता रहा। सो Yeah. This दैट्स is व्हाई because स्विच। for viewers, DSmart, which is a recently launched indicator on point and figure,
Yeah. For example, super trend is just one indicator, whereas DSmart consists of at least, I think, 5 or 6. It's a combination of 5 or 6 indicators, which includes super trend, and there are other indicators, and that's why it works better than super trend. Yes, that I found. तो उससे मुझे बेटर लगा. तो व्हाट आई डू, मैं R&D भी बहुत करता हूँ कि मैं और इसको एनहेंस कैसे कर सकूं, इसको और सुपर फाइन कैसे कर सकूं. तो डीस्मैट जैसे ही लॉन्च हुआ, सो वो उसका मैंने बैक टेस्ट किया डेली बेसिस पे. यहाँ पे बैक टेस्ट की जो फैसिलिटी है वो भी अच्छी है. एक ग्रुप को मैंने मीन्स व्हाट आई से 193 स्टॉक्स को मैंने बैक टेस्ट किया फ्रॉम द स्टार्टिंग 1990 से लेके अब तक, यानी पूरे 33 साल में जो भी फ्यूचर में सपोज रिलायंस है, डीएलएफ तब नहीं था, डीएलएफ जब से स्टार्ट हुआ, टीसीएस 2005 से स्टार्ट हुआ, तो जब से स्टार्ट हुए पूरा का पूरा बैक टेस्ट फैसिलिटी डी स्मार्ट का मैंने यहाँ जो फैसिलिटी है वो अच्छी दी गई है डिफाइंड एज में. विद इन आई थिंक सो 2 मिनट्स में वो स्कैनर मेरा हो गया था, यानी उसके जो रिजल्ट्स हैं वो 2 मिनट में आ गए थे. सुपर ट्रेंड बैक टेस्ट किया, सुपर ट्रेंड के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स बैक टेस्ट किए. 2 लिया, 2 of combination of 10, 10 of combination 3, 4, then 5 combination of 2. फिर डी स्मार्ट को मैंने 10, 6, 7, 8 सब बैक टेस्ट किया. तो मैं अकॉर्डिंग टू माय नेचर फिर जो मुझे चाहिए, जो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो मैंने 6 मेरे लिए चूज किया. आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करके चूज कर सकते हो. ओके, देन आई विल मूव दिस न्यू. ये एक डिलीवरी बेस का एग्जांपल है, लिंडे इंडिया. सो हमारा जो स्कैनर है, जो फोर्थ कॉलम वो यहाँ पे देगा स्कैनिंग में. ओके, ये जो है. उसके बाद हमको मैं शिफ्ट हो गया 0.25 में. 0.25 में सुपर ट्रेंड तब मैं यूज करता था. ओके, सुपर ट्रेंड 10 मल्टीप्लाई बाय 2 यूज करता हूँ. ओके, तो ये जो है जैसे ही लगाया, उसकी जो एंट्री थी पहले 3600 पे थी. फिर जैसे ही स्टॉक नीचे जाता है तो हमारा सुपर ट्रेंड भी एंट्री हमको नीचे दे रहा है. तो ये एंट्री अराउंड फिर हमको 3200 पे दी, और एसएल हमारा 3000 कुछ अराउंड रहेगा. वेरी टाइट एसएल. टाइट कह सकते हो. अगर मैं परसेंटेज में करूं तो ये अराउंड 8% होगा, बिकॉज ये मंथली बेसिस का स्कैनर से 3% के स्कैनर से आया है. तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो डिलीवरी बेस के लिए ओके रहेगा. हाँ, एग्जैक्टली. डिलीवरी के लिए 8% इज अ वेरी गुड स्टॉप लॉस. हाँ, तो ये जो फिर एंट्री हुई 3200 पे, और 3000 हमारा एसएल रहेगा, और ये रन हुआ. ओके, फिर ये जैसे स्टॉक्स ऊपर जाता है, सुपर ट्रेंड या डी स्मार्ट, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहता है. और इसकी जो लास्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कुछ दिन पहले, मींस 8th of March में, तो ये 3800 चल रहा था. सो अगर मैं कंपेयर करूं 3800 से ये 3200 से 600 पॉइंट्स. सो अराउंड रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:3 इजिली मुझे मिल गया. और ये मूव जो होता है वो सुपर फास्ट होता है. अगर हम पिछले इसके मूव देखें तो ये ट्रेंड हुआ अप, ये कंसोलिडेशन हुआ, और जो लास्ट जो इसका होता है, अभी भी ये एबीसी में फुल्ली नहीं हुआ. एबीसी ब्रेकआउट ये देगा अराउंड 3900 के ऊपर. ओके, जो एबीसी पैटर्न है. लेकिन हमारी जो एंट्री है वो 3200 पे ही हो गई. आई थिंक सो इसने 3900 जो है ब्रेकआउट दे दिया है अब करंटली. तो मेरी जर्नी जो 32 से लेके 38 तक मिली, और जो नेक्स्ट जो हमारा क्या कहते हैं कि एबीसी पैटर्न है, उसके हिसाब से 3900 के फिर आगे आती है, और उस 3900 पे एंट्री होती है, और उसका एसएल होगा 3000. वो एबीसी पैटर्न है. ये प्रोबेबल एबीसी पैटर्न है. ओके, या अब नेक्स्ट ये निफ्टी में रिसेंटली बना है. ये ब्यूटीफुल वर्क करता है. आप कुछ भी ले लो, स्टॉक्स ले लो, डिलीवरी बेस ले लो, फ्यूचर ऑप्शन ले लो. मैं
निफ्टी बहुत ट्रेड करता हूँ। निफ्टी जो मैं चार्ट देखता हूँ वो 0.1% डेली में देखता हूँ। इंडेक्स में मैं निफ्टी को 0.1% देखता हूँ। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे एक बेरिश एंकर कॉलम है। करेक्ट। ये एंकर कॉलम के बीच में ये कंसोलिडेशन हुआ 1 2 3। ये जो थर्ड है, फोर्थ कॉलम ऑफ एक्स है, वहां पे हमको एबीसी जो स्कैनर है वो हमको सर्च करके देगा। यस। बेरिश बेरिश एबीसी पैटर्न का स्कैनर जो है वो यहाँ पे सर्च करके देगा। फिर हमको ये लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करना है। वो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले जस्ट अब ऊपर से ये कैसा है वो मैं दिखा रहा हूँ। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जो एंकर कॉलम बना उसका लो नहीं तोड़ना चाहिए, उसका हाई नहीं तोड़ना चाहिए। और सेकंड, ये बेरिश एंकर कॉलम है। ओके, तो हमको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का ही इसमें सोचना है। उसमें बीच में करेक्ट। अगर ये ऊपर जाता है उस टाइम पे हम कुछ नहीं करेंगे। जब भी लोअर टाइम फ्रेम में हमको सेल मिलेगा तभी ही हम सेल करेंगे, और जब बाय होगा तब हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? करेक्ट। क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं वो उसको नीचे लेके जाएंगे, बाद में लेके जाएंगे, कंसोलिडेशन के बाद में लेके जाएंगे। तब तक हमें उनके साथ ही रहना है। जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं उनके साथ ही रहना है, उसके उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। मीन्स व्हाट वी कैन से, जब नदी का जो फोर्स होता है हमको उसके साथ ही रहना है, नदी के अगेंस्ट नहीं जाना है। नदी के करेक्ट। अगेंस्ट जाएंगे तो मेहनत बहुत लगेगी, पैसा बहुत जाएगा, टाइम बहुत जाएगा। विद द फ्लो जाएंगे तो इजीली मक्खन के जैसे पैसे मिलेंगे। और जल्दी पहुंचेंगे आप। वीसीपी, हाँ वीसीपी में हमको फास्ट रिटर्न मिलेगा। वीसीपी कहें या प्रोबेबल एबीसी में हमको फास्ट रिटर्न मिलेगा, टाइम भी कम लगेगा। ओके, तो या। हुआ क्या, ये कंसोलिडेशन हुआ। ओके, एक सेलिंग यहाँ पे हमको मिलेगा, दूसरा सेलिंग हमको ये जो ओ कॉलम है वहां पे मिलेगा। ओके, और वो हमको फ्लो करके नीचे ले आएगा नीचे। तो ये फर्स्ट बेरिश एबीसी, उसके बाद एबीसी पैटर्न ने ही दूसरा एंकर कॉलम हमको दे दिया। सो व्हाट या। मैं क्या करता हूँ फिर, जो मेरा जो ये पैटर्न फेल कब होगी। ओके, जो एंकर कॉलम है ये अभी बेरिश है, तो एंकर कॉलम का टॉप जब तक नहीं टूटता तब तक मैं सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग ढूंढूंगा, सेलिंग मतलब का दैट ही। इज 17,800 राइट, अराउंड। हाँ 17,800 अराउंड, यस। ओके, ये हम लाइव ही देख लें हाँ। तो हमको चार्ट में वैल्यू भी दिखेगी। राइट। अब जो पहला हमको ये एंकर कॉलम मिला। ओके, ब्यूटीफुल फैसिलिटी यहाँ पे ये भी है कि एंकर कॉलम ढूंढने की कोई आपको विजिबली जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एसी लिखा हुआ अपने आप ही आ जाता है। करेक्ट। कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ। पैटर्न में हम जाएंगे, मैं यहाँ पे एंकर कॉलम टाइप करूंगा। ओके, यहाँ पे 15, ये अपने आप आ जाएगा। ओके, करेक्ट। तो यहाँ पे हमको ये ओ कॉलम मिला जो बेरिश हम कहेंगे, जैसे मैंने पहले पहले आपको शेयर किया, और एसी लिखा हुआ एंकर कॉलम अपने आप आ गया। सो फर्स्ट क्राइटेरिया कि मुझे चार कॉलम चाहिए, और ये एंकर कॉलम का टॉप और एंकर कॉलम का लो नहीं तोड़ना चाहिए। ओके, सो या। ये इसका टॉप है एंकर कॉलम का, दिस थिंग 18,400, और जो लो है 17,820। तो इन राइट। दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। ओके, अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, एक सेलिंग आपको यहाँ मिलेगी और एक यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे जो मिलेगी वो आपको कंटिन्यूअस नीचे ले आएगी। यहाँ पे डी डी स्मार्ट जो है, ये जो एक्स बना उसमें आपको एग्जिट नहीं करवाएगा। सो ये यहाँ पे एक नया हमको फिर एबीसी मिल गया। ओके, नया हमको एंकर कॉलम। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये हमको एंकर कॉलम मिला और यहाँ पे 4 कॉलम। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये एंकर कॉलम मैं भूल जाता हूँ, फॉरगेट। फिर मेरे पास जो फ्रेश नया एंकर कॉलम है उसकी दो वैल्यूज ले लेता हूँ। अब जो राइट। वैल्यू है वो 18,090 हाई है, और 17,600 जो लो है। उसके बीच में कंसोलिडेशन चाहिए, मिनिमम 4 कैंडल्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हमको डी स्मार्ट सेलिंग नहीं देगा, एक यहाँ पे हमको सेलिंग देगा।
और ये जो सेलिंग था वो सुपर था, यहाँ पे मैंने खुद किया था, और यहाँ पे गैप डाउन खुला था, यानी बहुत, हाँ। तो ये हमारा सेलिंग ही यहाँ पे सोचना है, ओके। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, वीसीपी में जैसे मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, और फिर मैं लो रिस्क एंट्री लेके यहाँ पे एंटर कर लूंगा। राइट। एंट्री आपके ऊपर है, आप उसको कॉलम रिवर्सल पे लो, ओके। आइदर यू गो इन अ लोअर टाइम फ्रेम, जो मेन है इसका हीरो, वो एंकर कॉलम, वो कौन सी डायरेक्शन है, उसके बाद हमको चार कॉलम चाहिए कंसोलिडेशन के लिए मिनिमम। उसके बाद आपको आपका सेटअप जो भी आपको कन्वीनियंट हो, पॉइंट एंड फिगर में, रैंको में, कैंडलस्टिक में, ओके, वो आप ट्रेड कर सकते हो। राइट। तो ये सेकंड बेरिश एबीसी हुआ, और ये उसके बाद एबीसी ने वापस मुझे नया एबीसी दिया, तो यहाँ पे हमको दूसरा एक एंकर कॉलम मिला, इसकी बाउंड्रीज हमने सेट कर दी, मिल गई हमको हाई और लो, उसके बीच में ये कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद फिर यहाँ पे जब ये एक्स कॉलम बन रहे हैं, एक्स कॉलम बन रहा होता है, तब लोअर टाइम फ्रेम में डी स्मार्ट या सुपर ट्रेंड आपको सेल नहीं देगा। करेक्ट। जब रिवर्स एंट्री लोअर टाइम फ्रेम में होगा ना, जब ये टॉप बनेगा, टॉप से जैसे ही वो यू टर्न लेगा नीचे की तरफ, तभी ही आपको डी स्मार्ट या फिर सुपर ट्रेंड या ट्रेंड लाइन, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, तभी ही आपको सेल देगी। जब ये एक्स कॉलम बन रहा होगा तभी ये आपको सेलिंग नहीं देगा, यानी तभी आपको सिर्फ चुपचाप बैठना है, और आपको ऐसा फील होगा कि मैंने टॉप पे सेल किया और मैंने टॉप पकड़ लिया, ऐसा। ओके, फिर ये वापस, सबको चाहिए। हाँ, जैसे सबको चाहिए, लेकिन कभी पैटर्न फेल भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 100% कुछ नहीं होता, ओके। तो ये भी एक बेरिश एंकर बुलिश एबीसी हुआ, ठीक है। 1 2 3, सी एंकर कॉलम की ब्यूटी ये है, जैसे प्रशांत सर ने कहा है कि अगर वो आप उस स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड वो मोमेंटम देता है, बस उसको ही पकड़ के मैंने ये सेटअप बनाया है। उनका जो ई लर्न में अराउंड जुलाई या सितंबर में एक वीडियो है, उनमें उन्होंने ये 30 सेकंड के लिए कहा था, वो मुझे याद रह गया, एंकर कॉलम। सो ये एंकर कॉलम ने मुझे सेल के लिए कहा, ये जो ऊपर यहां से इसका लो है 17,311, ये टिल 17,750 तक मुझे सिर्फ सेलिंग ही सोचना है। ये 450 पॉइंट्स ऊपर गया, ठीक है, लेकिन उसमें इतना ऊपर गया, उसके बाद ये हमको जैसे एंकर कॉलम जो डायरेक्शन है वही ट्रेड करना है, तो वहां से अराउंड आपको 670 या 650 पे आपको सेल देगा, और 650 आपको 100 पॉइंट का एसएल होगा, और वो टिल 16,000 इंट्राडे में 16,850 तक उसने लो बनाया। करेक्ट। ओके, और फिर ये अनदर उसने वापस ये बेरिश एंकर कॉलम दिया, तो मेरा ये प्रीवियस सेकंड लास्ट कैंसिल हो गया। अब ये बेरिश एंकर कॉलम मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरा हीरो है। अभी मेरा जो एसएल है ये 17,767 है, और ये जो लो है इसका 16,985। अब इन दोनों के बीच में ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया है। मतलब just to clarify, as long as Nifty is below 17,006, जो भी 800 समझिए, you will keep looking for short entries on a positional basis. Yes, correct. But you will trade long intraday, which you said you trade weekly options. That is a different system altogether. That is a different system. वो मैं कहाँ से लेता हूँ, ओके, वो इंट्राडे के लिए, हाँ, इंट्राडे है। नहीं, I just clarified because लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि you are doing nothing for 3-4 days or maybe till that fourth column comes. So there are ways where you are keep yourself busy in intraday long also. हाँ, वो
वो अगर आप जैसे मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैं उसका जो हायर टाइम फ्रेम है 2 स्टेप ऊपर सपोज, तो वहां पे मैं चला जाऊंगा, वो मैं लेता हूँ दिस थिंग 0.1, आई टेक 2। मैं रैंको से आया हूँ, तो रैंको में Okay. 2 कॉलम रिवर्सल होता है। ओके, रैंको की प्रॉपर्टीज मैंने ली है, और पॉइंट एंड फिगर में 3 कॉलम रिवर्स होता है। ओके, तो मैं प्रिफर यहाँ पे पॉइंट रिवर्सल बॉक्स साइज 2 रख रहा हूँ। ओके, आप 3 रख सकते हो। सो व्हाट वी कैन सी हियर, इसको मैं प्रीवियस वन को एनालाइज करूं। ओके, प्रीवियस जो हमारा डेली में एंकर कॉलम था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था Correct. 18,100 टू 17,200। फिर ये 4 कॉलम यहाँ पे बनेंगे आपके, और फिर ये यहाँ पे सेल आता है। Okay. सिंपल। तो यहाँ पे Yeah, सेल समझ है। गया. हाँ, ये अभी मैं जो इंट्राडे ट्रेड करता हूँ वो सिंपल क्लाउड के ऊपर है, तो मैं इंट्राडे में बाइंग सोचूंगा। सुबह या कहीं 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए जो ट्रेड मुझे मिलेगा ऑप्शंस में, ओके, वहां पे ट्रेड करूंगा। इसके हिसाब से वो मैं करता हूँ। वो मैं 5 मिनट Okay. की उसके ऊपर से करता हूँ ट्रेड, निफ्टी, तब तक। लेकिन जब अगर ये देखिए आज इसने यहाँ पे सेल दिया है, Right. ये हमारा एक्स बना, ये जो एक्स बना इसका टॉप है 17,140 डेली में। ओके, तब तक ये ऊपर ही जा रहा था। यहाँ पे 17,190 आपको 5 मिनट में दिखाएगा। ओके, जब तक ये क्लाउड के नीचे अभी आया, सो अभी Hmm. जस्ट मैंने सेल पोजीशन क्रिएट की है, और मेरा एसएल अभी ये रहेगा ये क्लाउड के वॉकिंग लेग के ऊपर 17,167। इनिशियली जो मेरा एसएल था ये शिफ्ट होते जाएगा जैसे जैसे ये नीचे आएगा। Yeah. सो इसकी एंट्री थी अराउंड 1720, और एसएल है 17,167। And सो this is a positional मैं, trade. हाँ, ये पोजिशनल ट्रेड है, ये इंट्राडे ट्रेड नहीं। ये मैंने लिया है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डेली। डेली मुझे एंकर कॉलम सेल है यहाँ पे, डेली एंकर कॉलम सेल है, तो मैं, हाँ. और ये जब फोर्थ एक्स की कॉलम बनेगी उसके बाद, जब मुझे लोअर टाइम फ्रेम, मेरी लोअर टाइम फ्रेम है 5 मिनट, यहाँ पे मुझे सेल दिया। सो सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे मुझे सेल आज दिया, तो मैं आज सेल करूँ। तब तक मैं इंट्राडे में ट्रेड करता था, लॉन्ग करता था। Correct. ओके, जब यहाँ पे पोजिशनल सेल मना कर रहा है, तो इंट्राडे में तब मैं जब यहाँ बाय आता है 5 मिनट में, तो मैं वहां पे सेल वो करता हूँ, Yeah. ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। ओके, Okay. सो वी मूव अहेड। ओके, ये जो पॉइंट एंड फिगर में जो हम इजीली वीसीपी स्कैन कर पाते हैं, ठीक है, इसका अगर मैं एक्सपांड फॉर्म करूं कैंडल स्टिक में 15 मिनट में, तो वो ऐसा दिखेगा। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश डाउन ट्रेंड, ये कंसोलिडेशन, और यहाँ पे आपका सेल आएगा 650 पे, एसएल होगा अराउंड अराउंड यहाँ पे 750। Right. और ठीक है, और ये पहले का स्क्रीनशॉट है, ये नीचे अराउंड 16,850 तक गया। 100 पॉइंट के एसएल Yeah. से मुझे अराउंड 800 पॉइंट्स की जर्नी मिली। Okay. तो वीसीपी पैटर्न में यही होता है, जब मूव आता है तो वो बहुत एक्सप्लोसिव आता है, फास्ट आता है। ओके, ट्रेंड मुझे Yeah. मिल जाता है एंकर कॉलम से। ये अभी जो यूएस में एसवीबी बैंक है, ठीक है, Oh yeah. कोलैप्स हुई, उसका मैं डिलीवरी बेस अगर मैं एग्जांपल लूं, तो ये 3 कॉलम 3% मल्टीप्लाई बाय 3 Hmm. रिवर्सल बेरिश एबीसी था यहाँ पे। ओके, ये Yes. जो है ये बेरिश एबीसी है। उसके बाद ये 1 2 3 4 4 जो 4, यहाँ पे एक फोर्थ कॉलम जो बनी एक्स की, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं लो टाइम फ्रेम में जाऊंगा, यहाँ पे हमको स्कैनर स्कैन करके देगा, तब ऑलरेडी राइट वो सुपर ट्रेंड नीचे ही था। हमें वेट करना है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर जाए और फिर वो नीचे आए। तो जब राइट हम वेट कर रहे थे सुपर ट्रेंड के ऊपर जाने की, तो एक ओ कॉलम बना, फिफ्थ कॉलम, और ये एक्स कॉलम बना, सिक्स कॉलम। एक्स कॉलम बना जो अप ट्रेंड है वो यहाँ पे बना। सी ब्यूटी जो है यहाँ पे, कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। ये जो एक्स कॉलम जो है फोर्थ, उसके बाद सिक्स कॉलम भी बना। फोर्थ के बाद उसने कहीं पे भी हमको जो पॉइंट एंड फिगर में सुपर ट्रेंड है या डी सेल स्मार्ट ने सेल नहीं दिया, ठीक है। करेक्ट भले यहाँ पे कॉलम रिवर्सल हुआ, डेली में कॉलम रिवर्सल हुआ, लेकिन जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें सेल नहीं आया। दैट्स वाई मैं कॉलम रिवर्सल पे ट्रेड नहीं करता हूँ। वहां पे बहुत लो रिस्क एंट्री है, लेकिन वो कभी कभी फॉल्स देता है मुझे सिग्नल। सो मैं लोअर राइट टाइम फ्रेम से ही सिग्नल लेता हूँ। तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे सेल आया 285 पे, और हमारा एसएल तब अराउंड 330 रहेगा। और वो जब ये कोलैप्स हुई बैंक, तो यहाँ पे 90 तक थी। जब वो सैटरडे को अनाउंस हुआ तो फ्राइडे उसका क्लोजिंग 90 था। राइट तो जो सेलिंग था, जो सेलर्स थे, हमको तो सैटरडे को पता चला वो बैंक उठ गई है, लेकिन हाँ जो इनसाइडर्स थे उनको पहले से पता था 328 के लेवल से कि ये बैंक उठ जाने वाली है। राइट कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब वो मुझे पता नहीं है क्या है एक्चुअल में, मैं न्यूज फॉलो नहीं करता हूं ना ही, लेकिन गुजराती में एक कहावत है, भाव भगवान से। तो प्राइस एब्सोल्युटली ही मुझे पहले ही कह दे रहा था इस बैंक में कुछ गड़बड़ है बॉस, इसको बाय मत करो, सेल का ही ढूंढो, ठीक है। तो यहां से कहीं से आ रहा था सेल, ओके। मंथ बहुत महीनों से कि ये सेल की ही कैंडिडेट है एसवी बैंक। भले यहाँ से फिर ऊपर भी गई, ये कंसोलिडेशन भी हुई, यहाँ पे बहुत सारे जो सेलर्स थे वो निकल गए होंगे, नए फ्रेश बायर्स भी चढ़ गए होंगे, लेकिन हमारा जो एंकर कॉलम, हमारा जो हीरो था, वो सेल ही बोल रहा था, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब डायरेक्शन हमको मिलती है वो सुपर मिलती है। ये एक्सप्लोसिव वीसीपी या प्रोबेबल एबीसी पैटर्न जो एसवीबी में हमने वर्क की। So basically, ओके, moral of the story is never ignore an anchor column. हाँ, नेवर एवर। अभी मैं एंकर कॉलम पे और भी रिसर्च कर रहा हूँ, जो एंकर कॉलम के ऊपर से ही मैं ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करूं, ठीक है। इतना कंसोलिडेशन टाइम नहीं ले, कंसोलिडेशन टाइम कम करना है मुझे, और फिर Okay, रिटर्न जो है इससे अच्छा मिले, उस पे वर्कआउट कर रहा हूँ। वो हम कमिंग मंथ्स में मैं शेयर करूंगा, ओके। okay, स्कैनर जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक है। ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। ओके, ये जो एक मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, अब ये ट्रेड लिया था जब ये बॉटम 1600 850 से 1600 850 से जब ये ऊपर आ रहा था, तब ये मैंने स्कैन किया था 1 मिनट पे। यानी इसमें आप अगर थोड़ा थोड़ा ट्रिकी भी हो जाओ, ओके, मैं आपको दिखाऊं। ये एक एंकर कॉलम बना। अगर आपको ये एंकर कॉलम बन गया, फिर ये ऊपर आएगा। अगर आपको ये जर्नी भी लेनी है, ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है जो ऊपर जा रहा है, उसकी भी जर्नी लेनी है, लेकिन ये बहुत बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद हाँ ही आप इस पे जंप कीजिएगा। वरना प्लीज 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 मैं सजेस्ट करता हूँ वो मत कीजिएगा। एक साइड हमको डेली बोल रहा है बाय करो, कंसोलिडेशन पीरियड में वो ऊपर जा रहा है, यानी लोअर टाइम फ्रेम कहेगी वो डेली बोल रहा है सेल करो, कंसोलिडेशन बोल रहा है वो ऊपर जा रहा है, इन्हें लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट कहेगा वो बाय करो। तो ये दो ट्रेड आपको, अगर साइकोलॉजिकली आप बहुत प्रैक्टिस की है, ईयर्स ऑफ ईयर्स आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया है, तो ही करना, नहीं तो नहीं करना। वरना कंफ्यूज हो जाओगे, बाय कब करना है, निकलना कब है, सेल कब करना है। correct, ओके, तो ये मैंने correct. लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट मुझे बाय कह रही थी, और ये उसने मुझे स्कैनर ने बाय दिया था।
सो मैंने अराउंड यहाँ पे बाय किया था 16,950 पे, और उसका मेरा एसएल था 870। ओके, और यहाँ पे अराउंड उसने मुझे बाय दिया था और ये मेरा एसएल था, और फिर मैंने ये होल्ड किया था। दूसरे दिन ये गैप अप हुआ था अराउंड 17,100 पे। सो ये कुछ नहीं है, ये एबीसी पैटर्न ही है, ये एक्सप्लोसिव वीसीपी है। ओके, लेकिन ये लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसके और लोअर टाइम फ्रेम में मैं गया। 5 मिनट करेक्ट। मैंने स्कैन, 5 मिनट में स्कैन किया, और 1 मिनट में मैंने ये ट्रेड किया है। ओके, ओके। अब ये जो है इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। ओके, ये मैंने जो स्कैन किया है ये 20% मल्टीप्लाई बाय 3 है, यानी ये हम कह सकते हैं ईयरली चार्ट। ये नीचे यस। जो बॉक्स में है ये ईयरली चार्ट है। ओके, और उसके जो डेली में मैंने लिया है ये मंथली चार्ट कह सकते हो कैंडलस्टिक में, लेकिन यहाँ पे हम डेली पॉइंट एंड फिगर में अगर मैं लेता हूँ 20% ऑफ 3, 20% ऑफ डेली, यानी ये एक ईयरली हुआ, उसमें हमको एंकर कॉलम मिली और ये 3 हमारे कॉलम मिले। उसके बाद मैं शिफ्ट होता हूँ 3% ऑफ एबीबी। ओके, एबीबी में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक फर्स्ट एंट्री मुझे यहाँ पे मिलेगी राइट। अराउंड 800। और देखिए ये ईयरली चार्ट है तो इसके एसएल बहुत बहुत बड़े होंगे। अगर आप राइट। इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपके एसएल बहुत बड़े होंगे। तो 800 का एसएल मेरा अराउंड 600 होगा। तो ये ट्रेल होके होके ऊपर आया और मुझे 800 पे ही उसने एग्जिट दिया। ये ओके। उसके बाद 1200 1400 भी गया, ठीक है, एग्जिट मुझे 800 पे दिया, यानी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। कॉस्ट टू कॉस्ट पे मुझे निकाल दिया उसने, डी स्मार्ट ने। मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। सेकंड एंट्री मेरी यहाँ पे हुई वापस, ये अराउंड मेरी 1200 पे होगी, और एग्जिट मेरा अराउंड 1100, यानी यानी मुझे यहाँ पे 100 रुपए का नुकसान हुआ। फिर थर्ड एंट्री मेरी यहाँ पे हुई। ओके, ये अराउंड मेरी 1100 पे हुई, और अभी ये जो स्टॉक है अगर मैं देखूं तो एक एबीबी जो है ट्रेड हो रहा है $3100। 3100। ओके, ये मेरी एंट्री यहाँ पे थी 1130 पे। करेक्ट। ओके, अगर मैं एसएल लेता हूँ तो 800 का राउंड आएगा। यस। अगर जो भी ये मैंने सपोज लो का एसएल ले लिया तो 800 आएगा। 1130 पे मेरी एंट्री थी, और एसएल जो 870 का था, और अभी ये स्टॉक चल रहा है 1300। तो ये जो एग्जांपल है ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से है। मैं या। स्कैन करूंगा 10%, 7%, या उससे ऊपर 15 या 20, और मैं ट्रेड करूंगा 3% या 1% में। मैं राइट। 1% से नीचे में नहीं जाऊंगा अगर मेरा होराइजन 6 मंथ्स 1 ईयर का है या मल्टी ईयर का है। ओके, करेक्ट। ऐसे भी हम इसमें सेम पैटर्न ये अप्लाई होती है इन्वेस्टमेंट में भी। ऐसा नहीं कि ये तो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिलीवरी मतलब बेस के राइट लिए। फ्रॉम इंट्राडे टू लॉन्ग टर्म सब कुछ हो सकता है इसमें। सब कुछ एक स्कैनर में हो सकता है। आपका टर्म कम टाइम में आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, और आपका एंट्री भी लो में होगी। राइट। अब ये सेम जो है फेलियर कहाँ पे हुए थे, भेल है ये, डेली का एबीसी था बेरिश, और ये उसने फर्स्ट मुझे यहाँ पे रेड कैंडल, उसी रेड कैंडल ने मुझे सेल सेल दिया। ओके, यहाँ पे सेल था और ये एग्जिट यहाँ पे हो जाता है अराउंड। तो कॉस्ट टू कॉस्ट फर्स्ट मेरा एसएल हुआ, फिर ये एसएल हुआ वापस, मेरा एंट्री हुई मेरी यहाँ पे, और मेरा एसएल जो हुआ 2% मेरा लॉस हुआ। 1.6 पॉइंट्स मेरे इसमें गए। थर्ड एंट्री इसमें मेरी यहाँ पे हुई, उसमें मेरा एग्जिट यहाँ पे हुआ। ओके, उसमें मुझे 4 रुपए मिले अराउंड 5%। या। ये मैंने ट्रेड किया है 5 मिनट में और 0.15% पे।
सो ऐसा नहीं है कि एक एंट्री 2 एंट्री आपको फॉल्स देगी। इसमें जब तक ये एंकर कॉलम का हाई या लो नहीं टूटता है, आपको बेरिश ही ट्रेड ढूंढना है Keep taking the short और trades. Yeah. कीप मेकिंग द शॉर्ट ट्रेंड। अल्टीमेटली वो आपको रिटर्न देगा, ठीक है। और उसके बाद भी सपोज ये आगे मैंने नहीं लिया, उसके बाद भी इसने मुझे ये नया बेरिश एबीसी दिया, ये एबीसी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये नया एबीसी मिला, और फिर जब ये यहाँ पे ट्रेड आया, उसने वापस मुझे 8% रिटर्न दिया। Okay. अगर मैं इसमें लगा रहा तो मेरा पहले 2% लॉस हुआ और मुझे 12% मिला। अल्टीमेटली 10% मुझे प्रॉफिट देके गया। Correct. ओके, सो नेक्स्ट मैं इसमें एनहेंसमेंट भी करता हूँ, कोई Q&A सेशंस भी रखूंगा। ओके, इसके ऊपर नेक्स्ट हमारे आएंगे। सो यू कीप फॉलोइंग द स्पेस। ट्विटर में मैं शेयर करूंगा उसके अनाउंसमेंट डेट और टाइम। ओके, होपफुली आपको ये जो ट्रेडिंग आइडिया है मेरा, वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल रहे, और एंकर कॉलम जो है हमारा हीरो, उसको आप ऐड करके आप नया नजरिया ले सकें और आपको हेल्पफुल हो। मैं वापस थैंक्स करूंगा मिस्टर प्रशांत शाह और कृष्ण कुमार जी का। So thank ठीक you, है, Mr. Prakash Tejwani, for this brilliant concept. That is what we have always been saying. There are so many tools in TradePoint, and it is up to you to how to use them, how to adapt to them, how to tweak them, and what you should do to make it suitable to yourself, your own temperament. So that is what he has exactly done. He has taken tips from, okay, tips is the wrong word. He has taken pointers from webinars and shows, and then he has tweaked the whole system to his own temperament, and that is what he is trading. So we hope you liked it, and if there are any questions, please comment on the video below or maybe on Twitter. So, and keep sharing this video and like and subscribe to this channel. Thank you very much. थैंक यू डिफाइन एज।